नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रशासन, जिला पंचायत और कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग बीदर द्वारा शिवशरणे हेमारेड्डी मल्लम्मा जयंती समारोह का किया गया आयोजन। कर्नाटक के उडुपी जिले में महिला छात्रावास की दीवार पर भड़काऊ नारे लिखे पाए गए, मामला हुआ दर्ज। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीआरएस नेता के कविता ने की तेलंगाना में होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता रद्द करने की मांग। भारत ने दुश्मन के किले को कर दिया धुआं धुआं, ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो सेना ने किया जारी। जम्मू और पंजाब में पाक बॉर्डर से सटे इलाकों में रात में नहीं चलेगी ट्रेनें, रेलवे का बड़ा फैसला। देश अखंड भारत की तरफ आगे बढ़े, अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख जैनुल आबेदीन ने कहा। अब समाचार विस्तार से। सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च सेंट्रल की ओर से हर साल की तरह क्राइस्ट वार्षिक यात्रा महोत्सव के लिए 9 को जुलूस, 10 को भजन और 11 को सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया जाएगा। सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च सेंट्रल कांग्रेगेशन के पादरी आदरणीय विल्सन सुमित्रा ने कहा कि भजन और प्रार्थना सभा का चयन किया गया है। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ। 2020 ಮತ್ತು 25ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಬೀದರ್ ಜಾತ್ರೆಯು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ। ನಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತರಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಕರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಜಯ್ ಮೂಡಲ್ಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವಂತದ್ದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ। ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ। ಈ ಜಾತ್ರೆ ಜನರು ಎಷ್ಟು ತಡೆಯಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇವಲ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಜರುಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ನಮ್ಮ SP ಅವರು, ನಮ್ಮ DOSP ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ DC ಅವರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। जिला प्रशासन, जिला पंचायत और कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग बीदर के संयुक्त तत्वाधान में शहर के अमलापुर रोड स्थित शिवशरणे हेमारेड्डी मल्लम्मा सामुदायिक भवन में शिवशरणे हेमारेड्डी मल्लम्मा जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्घाटन को दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने की। इस अवसर पर 10वीं की परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने वाले रेड्डी समुदाय के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रेड्डी समाज के गुरु पूज्य NV रेड्डी समाज के अध्यक्ष शंकर रेड्डी, नगर परिषद सदस्य राजू चिंतामणि और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದ ಈಗ ಬದಲಿಗಟ್ಟಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ। ನಮ್ದೇನೋ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। ನಾವು ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ದೇವ್ರಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರದಿದೆ। ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರವೀಣ ಹೇಮಾರೆಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಭಿವಾಸ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಧನ್ಯವಾದ। ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि कर्नाटक के उडुपी जिले के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के महिला छात्रावास की बाथरूम की दीवारों पर धार्मिक समुदाय को निशाना बनाते हुए भड़काऊ और अश्लील भित्ति चित्र पाए गए। घटना 7 मई की शाम को तब प्रकाश में आई जब करकला तालुके के निट्टे में स्थित गर्ल्स हॉस्टल के मुख्य ब्लॉक के बाथरूम की दीवार पर अंग्रेजी में भड़काऊ नारे लिखे मिले। सूचना मिलने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के बयान के अनुसार नारे दो समुदाय के बीच वैमनस्य भड़काने के लिए लिखे गए थे। आपत्तिजनक भाषा में लिखे गए नारे की शिकायत हॉस्टल मैनेजर ने स्थानीय पुलिस से की है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते अब देश में कई समारोह को स्थगित किया जा रहा है। इसी बीच अब तेलंगाना में होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पर भी खतरा मंडरा रहा है और इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता और एमएलसी के कविता ने राज्य सरकार से भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते तेलंगाना में होने वाली मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंपटीशन को स्थगित करने का आग्रह किया। इस बारे में एमएलसी कविता ने कहा कि देश में युद्ध जैसे माहौल के दौरान राज्य में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित करना सही नहीं होगा। आईपीएल के रद्द किए जाने का उदाहरण ही देते हुए कविता ने तेलंगाना को ऐसे ही आयोजनों के लिए होने वाली आलोचना की चेतावनी दी, क्योंकि इस देश इस समय गंभीर सुरक्षा चिंताओं का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे में हमें बुद्धिमानी से काम करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए, वरना इससे गलत मैसेज जाएगा। भारत ने एलओसी के निकट आतंकवादियों के एक बड़े ठिकाने को उड़ा दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी कार्यवाही के बीच चौकस भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के निकट घुसपैठ के लिए बनाए गए एक और आतंकी ठिकाने को विस्फोट से उड़ा दिया। जम्मू कश्मीर और पंजाब की कई लोकेशन पर 8-9 मई को पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में ये कार्यवाही की गई है। आतंकियों के लॉन्च पैड पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा के करीब बनाए जाते हैं। इन्हें भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने और फिर उन्हें अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत न केवल अब आतंकियों के अड्डों को सीधे निशाना बना रही है, साथ ही पाकिस्तान सेना की ओर से किए गए हमलों के जवाब में ऐसी कार्यवाही कर रही है जिससे पड़ोसी मुल्क देश दहशत छा गई है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आज शनिवार को जहीराबाद कस्बे के गार्डन नगर अलीपुर स्थित रेवजीबी गार्डन मेमोरियल मेथोडिस्ट सेंट्रल चर्च परिसर में आयोजित मेथोडिस्ट 95 उज्जीव सभा मेले का उद्घाटन माननीय विधायक कोंती मानिकराव, डीसीएमएच चेयरमैन शिव कुमार द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस दौरान डीएस सुकुमार, जिला धर्मगुरु सरीन जॉन, महासचिव रवि कुमार और पादरियों की उपस्थिति में ध्वज जुलूस कार्यक्रम की शुरुआत की। बाद में विधायक व चेयरमैन ने कहा कि यह मेला पिछले 95 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेला 3 दिन तक जारी रहेगा और जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव के लोग झंडा जुलूस के साथ इस मेले में आएंगे और भगवान का गुणगान करेंगे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट।
भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने 1 वर्ष का वेतन देश के जवानों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष यानी कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चेक के माध्यम से दान दिया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में जेडीयू सांसद ने कहा कि मैं पाकिस्तान के आतंकी हमले से देश मरमरता है और पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ हम सभी देशवासियों की भावना है। हम पीएम मोदी को बधाई देते हैं कि जिन आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों का कत्ल किया, उसको ये एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने कदम उठाया है। वहीं सीतामढ़ी से सांसद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हमारी जाबाज महिला कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सैल्यूट करता हूं। सिंदूर की लाज बचाने के लिए माता सीता का आशीर्वाद हमारे जवानों के साथ है। हम अपने सैनिकों पर गौरव करते हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद भी देते हैं। साथ ही जो हमारे सेना के जवान पदाधिकारी पूरी साहस के साथ, ताकत के साथ देश सेवा में लगे हैं। पाकिस्तान पर हमला जारी है और हम उन्हें भी बताना चाहते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं, क्योंकि उन्हें हम देश के गौरव मानते हैं। उन पर पूरा देश गर्व करता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। प्रख्यात मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ का मुंबई में निधन हो गया। काशीनाथ घाणेकर, बाल गंधर्व ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, शहीद भगत सिंह से लेकर जानता राजा जैसे विविध किरदारों को अपनी वेशभूषा से अधिक यथार्थवादी बनाने वाली प्रसिद्ध डिजाइनर विक्रम गायकवाड़ के निधन की खबर से पूरा फिल्म उद्योग शोक में है। विक्रम गायकवाड़ को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने साल 2010 में मोनर मानुष के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद बाल गंधर्व के लिए, डर्टी पिक्चर के लिए और जातीश्वर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच रेलवे ने एहतियात बरतते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने जम्मू और पंजाब में पाकिस्तान से लगे बॉर्डर इलाकों तक जाने वाली ट्रेनों को रात से रोकना का फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, जम्मू जैसे जगहों से रात को गुजरने वाली ट्रेनों को अब रिशेड्यूल किया जाएगा। इन जगहों से गुजरने वाली ट्रेनों को रिशेड्यूल करके सुबह से वक्त चलाया जाएगा। वहीं छोटी दूरी की ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया गया। जानकारी के अनुसार जो ट्रेनें बॉर्डर एरिया में रात को पहुंच रहे थे, जैसे अमृतसर, जम्मू और फिरोजपुर, उन्हें सुबह वहां पहुंचा जाएगा। इस फैसले के कारण करीब 15 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होंगी। हालांकि यात्रियों को लाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन दिन में चलाने का फैसला किया। दिन में चलाने वाली सभी ट्रेनें जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। भारत के हमलों से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत के कई शहरों पर मिसाइलें दाग रहा है, जिसको लेकर अजमेर दरगाह के प्रमुख जैनुल आबिदीन ने कहा कि दोनों मुल्कों में फर्क यह है कि वो एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद बेकसूर लोगों पर हमला कर रहा है और एक जिम्मेदार देश होने के नाते हमने उन्हीं आतंकवादियों पर हमला किया है जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर जाड़ा था। हमारे देश का फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की तरफ आगे बढ़े और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पर कब्जा करके पाकिस्तान की कम से कम 5 टुकड़े होने चाहिए। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद नाहक बेकसूर लोगों के ऊपर जो है हमला कर रहा है, उन बेकसूर लोगों की जानें ले रहा है। हमने सिर्फ हमला किया तो उन आतंकवादियों पे किया जिन्होंने हमारी बहू बहनों का जो है सिंदूर को उजाड़ा। हमारे देश का अब ये फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की ओर आगे बढ़े। पाकिस्तान के 5 टुकड़े कम से कम होने चाहिए, उनको अंदर घुस के मारना चाहिए ताकि इस आतंकवाद का जड़ से सफाया हो सके। पाकिस्तान की फौज डर चुकी है, ठिकानों से भागने लगी है और सांसद ने शरीफ को बुजदिल भी कहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा है उसने बुजदिल, क्यों कि वो आसिम मुनीर जो उनका कमांडर इन चीफ है उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है और उसके पास में कोई विल पावर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की विल पावर है, जिसकी वजह से हमने अंदर घुस करके उनको मारा है, मुंह तोड़ जवाब दिया है और अखंड भारत की तरफ हमने एक कदम और आगे बढ़ाया है। भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गानों पर और जिस तरह के पॉडकास्ट जारी होते हैं उन पर भी रोक लगा दी है पाकिस्तान के। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब लगाई है, बहुत अच्छा किया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं हमारे मंत्रालय को। देखिए, भारत ने पहलगाम का जो बदला लेने की कोशिश की और लिया और हमारी उन बहू बेटियों को इनके मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी को आधार बना करके हमलावर हुए और जो आतंकी थे उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया। दोनों मुल्कों के अंदर फर्क ये है कि वो एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद
नाहक बेकसूर लोगों के ऊपर जो है हमला कर रहा है, उन बेकसूर लोगों की जानें ले रहा है। और हम एक जिम्मेदार कंट्री होने के नाते हमने सिर्फ हमला किया तो उन आतंकवादियों पे किया जिन्होंने हमारी बहू बहनों का जो है सिंदूर को उजाड़ा। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लाहौर कराची तक हमला किया है, आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक अखंड भारत का सवाल है तो 14 अगस्त 1947 को भारत का जो विभाजन हुआ था वो गलत है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई लोगों के, जिम्मेदार लोगों के जो हैं, नेताओं के बयान भी आ चुके हैं। हमारे देश का अब ये फर्ज बनता है कि वो अखंड भारत की ओर आगे बढ़ें और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, उनके ऊपर कब्जा करके पाकिस्तान के 5 टुकड़े कम से कम होने चाहिए, वो करें। पूरी दुनिया भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है, आपका क्या कहना है? देखिए, भारत के साथ इसलिए खड़ी है कि हमारे देश का नेतृत्व जो है ऐसे विदेश मंत्री के हाथ में है कि जिन्होंने अदर कंट्रीज के विदेश मंत्रियों से, प्रेसिडेंटों से राब्ता कायम करके वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराया। और इसके साथ साथ हमारे जो एनएसए के जो चीफ हैं श्री अजीत डोभाल साहब, उनका नेतृत्व जो है वो भी इसके अंदर काम आ रहा है। तो इसी वजह से, यही वजह है कि तमाम विदेशों के जो नायक हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भारत के पीछे आके खड़े हो गए हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। भारत की कार्यवाही से बौखलाया पाकिस्तान भारत के कई इलाकों में हमला कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण जम्मू कश्मीर के सांबा में बाजार को बंद किया गया, जिससे यहां पर सभी दुकानें बंद हैं। पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर प्रशासन ने सांबा में बाजार को बंद करने का फैसला किया ताकि यहां के लोग सुरक्षित रहें। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया है। अब पाकिस्तान की ओर से भारत के कई इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान सीमा तनाव के मद्देनजर प्रयागराज में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। इस दौरान भगवान की पूजा अर्चना कर भारतीय सेना की सुरक्षा को लेकर प्रार्थना की गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिला प्रशासन, जिला पंचायत और कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग बीदर द्वारा शिवशरणे हेमारेड्डी मल्लम्मा जयंती समारोह का किया गया आयोजन। कर्नाटक के उडुपी जिले में महिला छात्रावास की दीवार पर भड़काऊ नारे लिखे पाए गए, मामला हुआ दर्ज। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीआरएस नेता के कविता ने की तेलंगाना में होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता रद्द करने की मांग। भारत ने दुश्मन के किले को कर दिया धुआं धुआं, ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो सेना ने किया जारी। जम्मू और पंजाब में पाक बॉर्डर से सटे इलाकों में रात में नहीं चलेगी ट्रेनें, रेलवे का बड़ा फैसला। देश अखंड भारत की तरफ आगे बढ़े, अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख जैनुल आबेदीन ने कहा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।